وہ راز جو تاریخ کے کتابوں میں دفن کر دیا گیا۔ سن 1681 میں جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانا شروع کیا تو وہ صرف تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک زبردست چالاکی اور دھوکہ دہی کے کھیل کا آغاز کر چکے تھے۔ مغل حکام کو چکمہ دینے کے لیے رشوت، سازش اور سفارتکاری کا ایسا جال بنا گیا کہ پورا ہندوستان دھیرے دھیرے ان کی گرفت میں آتا گیا۔ جب ان کی غداریوں کا پردہ فاش ہوا تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا جو تاریخ کے صفحات پر چائلڈ وارز کے نام سے جانی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت، سازش اور مفاد پرستی کا ایسا کھیل شروع ہوا جس نے ہندوستان کی خود مختاری کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ کیا آپ اس تاریخی راز کے مزید پہلو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ پرتگالی اس وقت یورپ کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر نیول طاقت کے حوالے سے۔ ہندوستان میں ان کی پہلی کالونی 1510 میں گوا میں قائم ہوئی تھی اور مغلوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ہی وہ ساحلی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ انہوں نے کالی کٹ کے بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ساحلی علاقوں میں قلعے بھی تعمیر کر لیے تھے۔ ان کی طاقت ہندوستان میں کافی عرصے تک قائم رہی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پرتگالیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندوستان میں قدم جما لیے۔ کمپنی کی کامیابی نے پورے ہندوستان کا تجارتی منظر بدل ڈالا۔ کمپنی کی بڑھتی ہوئی طاقت نے پرتگالیوں سمیت دیگر طاقتوں کو چیلنج کیا اور ہندوستان میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمت عملی اور تجارتی جال نے اس وقت کی طاقتوں کی نیند اڑا دی۔ سن 1632 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پرتگالیوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ پرتگالیوں نے ہگلی میں اپنی کالونی کو قلعے میں بدل کر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ مقامی لوگوں پر مظالم ڈھاتے، زبردستی عیسائیت قبول کرواتے، مغل جہازوں کو لوٹتے اور غیر قانونی ٹیکس وصول کرتے۔ سب سے بڑھ کر وہ یہاں کی عوام کو غلام بنانے میں بھی ملوث تھے۔ یہ حرکتیں شاہ جہاں کو برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے سخت کارروائی کا حکم دیا اور مغل فوج نے ہگلی کا محاصرہ کر لیا۔ زبردست جنگ کے بعد 10,000 سے زائد پرتگالی مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ کچھ کو غلام بنا لیا گیا جبکہ بہت سے جیلوں میں مر گئے۔ ان کے قلعے، بحری جہاز اور تجارتی مراکز تباہ کر دیے گئے۔ یہ شکست پرتگالیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی اور وہ کبھی بھی مغلوں کی طاقت کو دوبارہ چیلنج نہ کر سکے۔ اس واقعے نے ہندوستان میں ان کی طاقت کا خاتمہ کر دیا اور ان کا زوال شروع ہو گیا۔ پرتگالیوں کی اس شکست کا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا کیونکہ اب میدان صاف ہو چکا تھا۔ صرف 2 سال بعد سن 1634 میں انگریزوں کو جنوبی ہندوستان کے ساحل پر قلعہ بنانے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ اجازت مغلوں سے نہیں بلکہ وجے نگر سے حاصل کی گئی تھی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ہندوستان میں تجارت اور طاقت کا راستہ کھل چکا تھا۔ وجے نگر کبھی بھی مغلوں کے زیر سلطنت نہیں رہی بلکہ ایک طاقتور خود مختار ریاست تھی جس میں میسور کا علاقہ بھی شامل تھا جو بعد میں حیدر علی کی سلطنت بن گیا۔ سن 1634 میں جب انگریزوں کو جنوبی ساحل پر قلعہ بنانے کی اجازت مل گئی، اس وقت وجے نگر کا زوال شروع ہو چکا تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چکا تھا۔ اس وقت کے تمل ناڈو کے شہر ویلور میں یہ بچی کچی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے اسی کمزور ہوتی ریاست سے اجازت حاصل کی اور یہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ گاؤں مچھیروں کی آباد کاری کا مرکز تھا اور اس کا نام تھا مدراس پٹنم۔ انگریزوں نے یہاں فورٹ جارج بنایا اور جیسے ہی ارد گرد کی آبادیاں بڑھنے لگی اس گاؤں کا نام مدراس پڑ گیا۔ یوں ہندوستان کا ایک مشہور شہر وجود میں آیا جو آج کل چنئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تصور کریں، ایک معمولی سا مچھلی پکڑنے والا گاؤں آج دنیا بھر میں ایک مصروف شہر بن چکا ہے جہاں تاریخ اور ترقی کے سنگم پر ہم کھڑے ہیں۔ مدراس کو ہندوستان میں انگریزوں کی پہلی باقاعدہ کالونی کہا جا سکتا ہے اور یہ شہر بہت جلد تیز رفتار سے ترقی کرتا ہوا انگریزوں کی سب سے اہم تجارتی بندرگاہ بن گیا۔ صرف چند دہائیوں میں اس کی آبادی چند سو سے بڑھ کر 40,000 تک جا پہنچی۔ مدراس کی تعمیر کے 27 سال بعد انگریزوں کو ایک اور حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی۔ انہیں بمبئی بھی مل گیا، لیکن یہ شہر انگریزوں کو کسی ہندوستانی حکمران سے نہیں بلکہ ایک دلچسپ طریقے سے ملا۔
सन 1661 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोम की पुर्तगाली शहजादी कैथरीन से शादी हुई और पुर्तगालियों ने शहजादी के जहेज में बम्बई की बंदरगाह अंग्रेजों के हवाले कर दी। ये बंदरगाह पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थी। जब जहेज का सामान लंदन भेजा गया तो इसमें बम्बई का नक्शा भी शामिल था, लेकिन वो नक्शा रास्ते में कहीं गुम हो गया। अब लंदन में हुकूमती अफसरान परेशान हो गए कि आखिर बम्बई कहाँ है। कुछ होशियार अंग्रेजों ने अंदाजा लगाया कि ये शायद पुर्तगाल की मशहूर कॉलोनी ब्राजील के करीब होगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी कि अंग्रेजों को आखिरकार पता चल गया कि बम्बई कहाँ है और ये अहम शहर उनके कब्जे में आ गया। बरतानवी हुकूमत ने इसे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने फोर्ट लॉरेंस के नाम से वहाँ एक किला तामीर किया। सन 1668 में चार्ल्स दोम ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के किराए पर दे दिया। कंपनी ने फौरन यहाँ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए तिजारती और फौजी इक़दामात शुरू किए। चंद सालों में बम्बई एक अहम तिजारती बंदरगाह बन गया, जहाँ कंपनी ने किले, गोदियाँ और दफातर बनाए। कंपनी ने यहाँ अपने इंतजामी निज़ाम को बेहतर बनाया, मुकामी फौज तैयार की और मुगल हुक्काम से मजीद मराहत हासिल करने की कोशिश की। यूरोपी ताजिरों, मुकामी कारोबारियों और मजदूरों की आमद के साथ बम्बई एक कसीर सकाफती शहर बन गया। इसके अलावा कंपनी ने मुगल सल्तनत के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए चालाक सिफारतकारी और रिश्वत का इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास समेत कई दूसरे शहरों में अपने सिक्के चलाना शुरू कर दिए, जिससे उनकी माली ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। कंपनी ने अपने बनाए हुए सिक्के मुकामी बाजारों में राइज कर दिए और इस तरह मुकामी ताजिर और कारोबारी लोग उनके असर में आ गए। ये एक चालाक हिकमत अमली थी, जिसके जरिए कंपनी ने अपनी तजारत को मजीद फैलाया और हिंदुस्तान में अपनी माली गिरफ्त को मजबूत किया। अब कंपनी की ताकत बढ़ चुकी थी, खास तौर पर बंगाल में, जहां उसने फैक्ट्रियां और तिजारती मराकज कायम किए थे। मगर अभी तक वो मुगल शहंशाह के मुकाबले इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती की, जो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रुकावट बन गई। सन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह बंगाल में अपनी मर्जी से तिजारत करें, बगैर किसी रोक टोक के सामान खरीदें और बेचें और मुगल हुकूमत को टैक्स दिए बगैर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। लेकिन मुगल हुकूमत ने उन पर सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, जो अंग्रेजों को मंजूर नहीं था। इसलिए कंपनी ने चुपके चुपके गैर कानूनी तरीके इख्तियार करना शुरू कर दिए। अंग्रेज ताजिरों ने मुगल हुक्काम को रिश्वत देकर खास तिजारती रियायतें हासिल कर लीं, टैक्स देने से कतराने लगे और बगैर इजाजत अपनी चौकियां और किले बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ अंग्रेज ताजिरों ने मुकामी लोगों पर धौंस जमाना शुरू कर दी और तिजारत में धोखे देकर मुगल खजाने को नुकसान पहुंचाया। जब बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान को उनकी बातों का इल्म हुआ तो वो सख्त नाराज हुए और मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बारे में आगाह किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों और मुगल हुकूमत के दरमियान कसीदगी पैदा हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज ताजिरों ने मुकामी लोगों के साथ ऐसा जुल्म किया कि लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। वो बंगाली ताजिरों और बुनकरों पर दबाव डालते कि वो अपना माल बहुत सस्ते दामों पर बेचें। जो उनकी बात न मानता उसका कारोबार बर्बाद करने के लिए हर तरीका आजमाया जाता। अंग्रेज अपनी ताकत के जोर पर मुकामी ताजिरों को मजबूर करते कि वो सिर्फ कंपनी को ही माल बेचें और जो दूसरों से लेन देन करता उसे धमकियां दी जाती या उस पर भारी जुर्माने लगाए जाते। दूसरी तरफ खुद मुगल हुकूमत को टैक्स दिए बगैर आजादाना तिजारत करते, जबकि मुकामी ताजिरों पर भारी टैक्स आयद किए जाते ताकि वो माली तौर पर कमजोर हो जाएं। अंग्रेजों के पास ज्यादा सरमाया था, वो अपनी दौलत का बेरहमाना इस्तेमाल करते हुए मुकामी ताजिरों को दिवालिया कर देते और फिर उनसे जबरदस्ती सस्ते दामों पर माल खरीदते। अगर कोई एहतजाज करता तो अंग्रेज अपनी फौजी ताकत, धमकियां या सियासी चालाकियों से उसे खामोश कर देते। वो मुआहदा तोड़कर मुकामी ताजिरों को धोखा देते और हर हाल में अपना फायदा निकालते। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए था, हिंदुस्तान की तिजारत पर मुकम्मल कब्जा, ताकि आगे चलकर पूरे मुल्क पर हुक्मरानी की जा सके। अंग्रेजों के जुल्म सितम ने मुकामी आवाम को कुचल कर रख दिया और यही लूट मार आगे चलकर बरतानवी राज की बुनियाद बनी। शाइस्ता खान, जिनका असल नाम मिर्जा अबू तालिब था, मुगल सल्तनत के एक अजीम गवर्नर थे। वो 1664 से 1688 तक बंगाल के गवर्नर रहे और बादशाह औरंगजेब के मामू थे। उनका शुमार मुगल सल्तनत के काबिल तरीन हुक्मरानों में होता है।
सन 1681 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्ती की और उन्हें काबू में रखने की कोशिश की। उनके दौर में बंगाल तिजारत और मईशत का एक अहम मरकज बन गया। उन्होंने म्यांमार पर कामयाब हमला किया और चटागनंग को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। शाइस्ता खान ने ढाका में कई तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए। सन 1681 में जब अंग्रेजों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ सरकशी की तो शाइस्ता खान ने उनके खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी साल उन्होंने औरंगजेब को खत लिखा जिसमें अंग्रेजों को घटिया और झगड़ालू करार दिया, क्योंकि वो धोखाधड़ी और बदनज़मी से तिजारत में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहते थे। जब मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को ये सब पता चला तो उन्होंने फौरन जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। विलियम हेज 1681 से 1684 तक बंगाल का गवर्नर था, मगर गवर्नरी खत्म होने के बाद भी वो कंपनी के मामलात में दखल देता रहा। जब मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के ताल्लुकात बिगड़ चुके थे, उसने सर जॉन चाइल्ड, जो उस वक्त हिंदुस्तान में कंपनी का गवर्नर और मुंबई के कमांडर इन चीफ को एक खत लिखा। उसमें बंगाल में कंपनी को दरपेश मसाइल और मुगलों के साथ बढ़ती कसीदगी का जिक्र था। बरतानिया में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह जोसिया चाइल्ड जो इस सूरत हाल से आगाह हुआ तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को एक ऐसा पैगाम भेजा जैसे गरजते हुए बादलों की आवाज हो, जिसमें कहा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम तिजारत खत्म कर दें और सब कुछ छोड़कर वापस चले जाएं, या फिर वो तलवार जो इंग्लैंड के बादशाह ने हमें दी है उसे निकाल कर अंग्रेजों के हुकूक और वकार के लिए लड़ें। उसने कहा, हम इस तलवार से अंग्रेजी कौम का ऐसा वकार हिंदुस्तान में मनवा लेंगे कि कोई भी मुगल हुक्मरान हमारी ताकत और हुकूक का मुकाबला न कर सकेगा। उसके लफ्ज में इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो एक नया इनकलाब बर्पा करने की दहलीज पर खड़ा हो। जोसिया चाइल्ड के दिमाग में ये फैसला बिल्कुल साफ था। ये लड़ाई अब सिर्फ तिजारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की शान और इक़्तिदार की लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद जोसिया चाइल्ड ने हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म दिया और बरतानवी बादशाह किंग जेम्स दोम ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए रॉयल नेवी जहाज भेज दिया। यूं मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ऐसी जंग छिड़ गई जिसका आगाज और अंजाम तारीख के सफहात पर सुनहरे हरूफ में लिखे जाने वाले थे। ये जंग चाइल्ड वार्स के नाम से मशहूर हुई। नाजरीन, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी किस्त, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली किस्त में हम देखेंगे चाइल्ड वॉर, जहां अंग्रेजों को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई उन्हें शहंशाह औरंगजेब के कदमों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या औरंगजेब से कोई ऐसी गलती हुई जिसका फायदा अंग्रेजों ने बाद में उठाया? साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस चालाकी और हिकमत अमली से ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकतवर बनाया। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली शानदार वीडियो का। इससे पहले कि वीडियो खत्म हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया।